بلیٹن کا آغاز آج کی بڑی خبر سے آگاہ کرے۔ 4 سال بعد آخرکار مریم نواز کو انصاف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزائیں کالعدم قرار دے دی۔ دونوں لیگی رہنماؤں کو باعزت بری کر دیا گیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آمدن سے زائد اثاثوں میں نواز شریف اور مریم نواز کا تعلق ثابت نہیں ہو رہا۔ نیب عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا، صرف سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ان تمام ملزمان کو تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تفتیشی افسر نے جو جواب جمع کرایا ہے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ زبانی کلامی کام نہیں چلے گا، ٹھوس ثبوت ہیں تو سامنے لائے۔ عدالت نے مختصر تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ 2 بار جیل کاٹی، درجنوں پیشیاں بھگتیں، آخر کار 4 سال بعد مریم نواز کو انصاف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس سے باعزت بری کر دیا۔ احتساب عدالت کی سزا کل عدم قرار، صرف سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ آمدن سے زائد اثاثوں میں نواز شریف اور مریم نواز کا تعلق ثابت نہیں ہو رہا۔ جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ عدالت نے قرار دیا نیب کے بیانات اور دستاویزات میں تضاد ہے، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جو نواز شریف یا مریم نواز کا پراپرٹی سے تعلق جوڑے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ان تمام ملزمان کو تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تفتیشی افسر نے جو جواب جمع کرایا ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ زبانی کلامی کام نہیں چلے گا، ٹھوس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ نیب کی جانب سے ڈپٹی پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے موقف اختیار کیا کہ طارق شفیع کا بیان حلفی ریکارڈ پر رکھا گیا تھا۔ اس بیان حلفی میں گلف اسٹیل کی فروخت کا بتایا گیا۔ طارق شفیع یہ دکھانے میں ناکام رہے تھے کہ وہ بزنس پارٹنر تھے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پراپرٹی کی قیمت اور خریداری کے حوالے سے ڈاکومنٹ عدالت کو دکھائیں، زبانی باتیں نہ کریں۔ سردار مظفر عباسی نے بتایا نیب کے پاس ایسی کوئی بھی دستاویز موجود نہیں، جس پر عدالت نے مریم نواز کی اپیل منظور کرتے ہوئے ان کی 7 سال قید کی سزا اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی 1 سال قید کی سزا کل عدم قرار دے دی۔ لمبی آزمائش کے بعد سچ سامنے آ گیا۔ عمران نیازی پھر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ عدالتی فیصلے کے بعد مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو، کہا ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ عمران خان اس مقدمے کا سہارا لے کر اقتدار میں آئے، اب کیا کریں گے؟ جھوٹے الزامات لگانے والے شخص کا چہرہ تو آج دیکھنے لائق ہوگا۔ نواز شریف بھی جلد واپس آئیں گے۔ مریم نواز نے بتایا کہ نیب حراست کے دوران ان کی ویڈیو بنائی گئی۔ ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ آج امی کی بہت یاد آئی۔ 6 سال اسی میں گزر گئے، آزمائش تھی، لمبی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا۔ جس نے جھوٹ بولا، جس نے بہتان لگایا، آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، وہ آج کیا سوچتا ہوگا، آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے۔ ڈار صاحب جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ ان کو لے کے آیا۔ اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے۔ وہ بیساکھیوں پہ آیا اور نواز شریف کو فاؤل پلے کے ذریعے میدان سے باہر کر کے آئے، کیونکہ نواز شریف اگر میدان میں رہتا تو عمران خان 3 زندگیاں اور ہوتی تو وہ کبھی بھی اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میری ویڈیو جو نیب میں انہوں نے بنائی تھی، میں رات کو اپنے نائٹ سوٹ میں تھی، یہ کمرے پہ انہوں نے 12 بجے دھاوا بولا، 15-20 لوگ تھے اور ایک نے اسی طرح موبائل پکڑا ہوا تھا، وہ میری ویڈیو بنا رہا تھا۔ کرے ریلیز، ذرا دنیا بھی دیکھے، پوری پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مریم نواز کے ساتھ جیل میں انہوں نے کیا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مریم نواز کو مبارکباد دی، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سے متعلق دریافت کیا۔ مریم نواز نے بریت پر شکر ادا کیا۔ ملاقات میں مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ شہباز شریف نے مریم نواز کو مٹھائی کھلائی، دیگر پارٹی رہنماؤں کا بھی منہ میٹھا کرایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بیٹی مریم اور بیٹے صفدر کو بالآخر انصاف مل گیا۔ فیصلے پر نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ ان کے اور مریم کے خلاف مقدمات سیاسی تھے، خدا نے جھوٹوں کو بے نقاب کیا۔ پاکستان کے ادارے عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا عدالتی فیصلے پر رد عمل، کہا مریم نواز کا جرم اربوں روپے کے ایون فیلڈ کے محلات ہیں، اس جرم میں ان کا کردار کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ بہرحال پاکستان کی تاریخ کا ایک اور تاریخ دن ہے۔
असद उमर के मुताबिक रोज महंगाई बढ़ रही है और रोज इंपोर्टेड हुकूमत के लीडर्स के मुकदमे खारिज हो रहे हैं। ये है वो असल मकासद जिनके लिए साजिश करके इमरान खान को हटाया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला कर लिया है। वो कब पाकिस्तान आएंगे इसकी तफसीलात भी कुछ देर में आपको आगे आगाह करेंगे। लेकिन अभी आपको लिए जाएंगे मुजफ्फराबाद, जहां से अहम खबर शामिल है, जहां इमरान खान ने एक बार फिर पीडीएम हुकूमत को निशाने पर रख लिया है। जलसे से खिताब में कहा कि मुरासला जिसे झूठ कहते थे आज सच साबित हो गया है। शहबाज शरीफ तुम्हारा शुक्रिया, अब दुनिया को हकीकत का पता चलेगा। बैरूनी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, उनको एनआरओ दे दिया तो जेलों में गरीबों को क्यों कैद किया गया। जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। बैरूनी साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत हुई है। पैसा इनका खुदा है। एक आदमी परसों वापस आया, जब भी ये फाइनेंस मिनिस्टर बना मुल्क का दिवालिया निकाल के गया। अगर इस तरह के लोगों को हम एनआरओ दे देंगे तो मैं सवाल पूछता हूँ कि ये जेलों के अंदर गरीब लोगों को क्यों कैद किया हुआ है। और ये मेरा वादा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ हर इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीरियों की कुर्बानी को दुनिया को नहीं भूलने दूंगा। वेलकम है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाया। मरियम नवाज की बरियत के बाद नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ नवंबर के बाद वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल पंजाब में तब्दीली भी जरूरी है। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वकला को जल्द अदालत से रजू करने की हिदायत की है। कानूनी टीम जल्द अदालत से रजू करेगी। वो जल्द ही राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त भी दायर करेंगे। वो वतन वापस आकर अदालत का सामना करेंगे और इसी तरह अपील दायर करेंगे जिस तरह मरियम नवाज ने दायर की। तवील अदालती जंग के बाद मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवनफील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया गया। 6 साल की तवील अदालती मुकदमेबाजी में क्या कुछ होता रहा सलमान। जहांजेब अब्बासी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये वो आपसे शेयर कर रहे हैं। 2016 में पनामा स्कैंडल सामने आया तो तहरीक इंसाफ अखबारी खबरों को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। नवाज शरीफ मरियम नवाज ने आगाज से ही लंदन फ्लैट्स की मलकियत से इनकार करते हुए कहा फ्लैट्स हुसैन नवाज के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी टीम तश्कील दी। शरीफ फैमिली की पेशियां शुरू हो गईं। हुसैन नवाज की जीआईटी में पेशी की तस्वीर लीक हुई। पूरे अमल में तहरीक इंसाफ जश्न मनाती रही। पीटीआई के हक में सियासी बयानिया बनता गया। वाजिद जिया की सरबराही में बनने वाली जीआईटी की निगरानी के लिए जस्टिस एजाजुल हसन मॉनिटरिंग जज बन गए। जीआईटी की रिपोर्ट में नवाज शरीफ के अकामे का मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को पनामा केस का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्जाम पर ताहयात नाअहल करार दिया। 8 सितंबर 2017 को नैब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ और उनके तीनों बच्चों और दामाद के खिलाफ अबूरी रेफरेंस दायर किया। 19 अक्टूबर 2017 को मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर बराह रास्त, जबकि नवाज शरीफ पर उनके नुमाइंदे जाफर खान के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। नवाज शरीफ पहली बार 26 सितंबर 2017 जबकि मरियम नवाज 9 अक्टूबर को अदालत के रूबरू पेश हुई। 3 नवंबर को पहली बार नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर इकट्ठे अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 9 माह 20 दिन तक रेफरेंस की समाअत की और 3 जुलाई को फैसला महफूज किया। इस दौरान मजमूई तौर पर 18 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए। एक और अहम खबर भी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 अरब रुपए से जायद की मशकूक ट्रांजैक्शन का नैब रेफरेंस। अदालत ने आसिफ जरदारी की बरियत की अपील वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने समाअत की। फारूक एच नाई की मुआविन वकील अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए और एहतसाब अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तिना भी खत्म किया जाए। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। आसिफ जरदारी की दरखास्त बरियत गुज़श्ता साल नैब कोर्ट ने मुस्तरद की थी। एहतसाब को हुकूमत फारिग करने के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर का कहना है कि जनरल मुशर्रफ के बाद एहतसाब 58(2) बन गया है। एहतसाब को हुकूमत फारिग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे फैसले एक दलदल हैं, इस पर चाहिए कि लार्जर बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बिठाएं। ये फैसले 1-2 महीने में रिविजिट हो सकते हैं। इरफान कादिर का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ रात 10:03 पर देखिए।
मरी में पंजाब की पब्लिक सेक्टर जामियात के वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी की काविशों और अमली इक़दामात को सराहा। वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने 34.5 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटियों से इकट्ठे किए। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इतनी रकम जमा करना काबिल तहसीन है। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए तमाम जामियात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माहौल और मौसमियाती तब्दीली पर तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहते हैं। कभी यूनिवर्सिटी में इदारों को घसीटने की कोशिश नहीं की। जामियात ने हमेशा तलबा से तालीम, तरबियत और खेल की बात की। गवर्नर ने मजीद कहा कि जल्द यूनिवर्सिटी पुलिस बनाएंगे। कैंपस पुलिस का काम तलबा और असातिज़ा को देखना होगा। वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान को भी खसूसी सवेनियर से नवाजा गया। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना जारी है। किसान इत्तेहाद के कायदीन ने कहा है 3 मुतालबात हमने राना सनाउल्लाह को पेश किए हैं। हमने कहा है आप कमेटी बनाकर आज ही फैसला कर दें। इस पर बात करते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद है उस्मान भट्ट जी। उस्मान भट्ट, इस डिटेल थोड़ी सी बताइएगा। कोई 2-3 घंटे का वक्त दिया गया था? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में खैबर चौक के मुकाम पर। गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाला किसान एहतजाज धरना जो है वो दूसरे रोज़ भी जारी है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में किसान भाई हमारे मौजूद है जो हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। अब से 2 घंटे कबल जो है वो किसान इत्तेहाद का जो वफ्द है जिसमें खालिद हुसैन जो है जिसकी सरबराही कर रहे थे, उनकी मुलाकात राना सनाउल्लाह से हुई जिसमें उन्होंने अपने मुतालबात जो है वो पेश किए। जिसके बाद राना सनाउल्लाह ने 3 घंटे की मोहलत मांगी थी। अब से कुछ देर कबल जो है वो खालिद हुसैन आए और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की जानिब से उनको एक नोटिफिकेशन जो है वो दिया गया है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 10 तारीख तक जो है वो बिजली के जो बिल है वो किसानों से नहीं लिए जाएंगे। उनका कहना था कि जो उनके कमेटी है उससे वो मुशावरत करेंगे कि जो बाकी मुतालबात है आया कि वो मंजूर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि अगर हुकूमत उनके तमाम मुतालबात तस्लीम करती है तो पुरअमन तरीके से जो है वो वापस चले जाएंगे, और अगर हुकूमत उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो उनका अगला पड़ाव जो है वो DHO की जानिब होगा। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने तमाम अज़ला के लिए रेस्क्यू 1122 मोटर बाइक सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मोटर बाइक इमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी के लिए तिबी आलात का मुआयना किया। पंजाब के अज़ला ननकाना, शेखुपुरा और दीगर अज़ला के इमरजेंसी ऑफिसर्स को चाबियां दी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा मरीजों को बर वक्त हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए रोड्स पर इमरजेंसी सर्विस के लिए एक्स्ट्रा लाइन बनाएंगे।